speaker today. Suman Keshri ji was born in Muzaffarpur, Bihar. She's a distinct poetic voice in Hindi, known for her treatment of mythological themes and contemporary concerns with a holistic sensibility. She has also contributed significantly to genres such as articles, stories, dramas, and travelogues. Sumanji has prepared a book on the Armenian genocide alongside interpretations of poems. She conducted research on Surdas Amar Gheet at Jawaharlal Nehru University and earned her MBA from the University of Western Australia, Perth in 2001. She has been associated with administrative and later academic roles in the Government of India. In 2013, after retiring voluntarily as director from the Indian government, she earned her doctorate in literature degree from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth for her work on public welfare. Her poetry collection includes Argument with Yajnavalkya, Mona Lisa ki Aankhein, Shab aur Sapna, and In the Folds of the Pyramids. Her works have been published in various newspapers and magazines. She has also edited the book Namwar Singh in JNU. Today she will present Bhisham Sahani's vivid story of a train journey during the partition titled Amritsar Aagya. This is of course her brief, but I will also request Malashri, a dear friend of both of us, to say a few words about her. It's an absolute joy to welcome Suman here. Thank you so much for giving time. I also want to say that Suman wants to join the club. The next thing she told me is, can I donate some books to the library? So she brought the books, including hers and also her husband. It's Purushottam Agarwal, who everybody of course knows about. So she brought some and she said there's a carton load that is waiting. You're right. So in a way, Suman is a kind of a role model for me at least, because when you do so many things in life at a certain phase, you decide you want to so-called retire, you want to do other things. And she started a channel which is called Katha Nati. Katha Nati means acting out a Katha or reading out a Katha. And she has got thousands of followers. So you can go on YouTube or you can just go to Google and type Katha Nati Suman and you will get a whole lot of videos of the stories that she reads. And these are just dramatized readings, they're not acting. So all you need to do is to look at that and you will get a selection of wonderful stories in Hindi. Premchand, Nirmal Verma, Agay, just all the big names and wonderful stories. And since we're so much into the audio and the digital world, it's a great way to keep ourselves updated. So thank you very much. Thank you so much. आप सभी को कथा नृत्य की शुभकामनाएं। और मैं सबसे पहले माला जी, क्योंकि इन्होंने मुझे आप सबसे इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे ऑडियंस के सामने होने का मुझे मौका मिला है। और मैं सच कहूँ तो थोड़ी घबराहट थी, बहुत थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और मैं अपने आप को मूलतः कवि कहती हूँ, तो मैं एक छोटी सी कविता से अपनी बात शुरू करूँगी। क्योंकि महाभारत पर इन दिनों मैं काम कर रही हूँ और ये मेरी नई किताब है, निमित्त नहीं। यानी हम लोग महाभारत के युद्ध के कारण नहीं, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो कुंती हो, चाहे वो गांधारी हो, हम नहीं थे भाई बात। आप लोगों ने अपने आप करके हमारा मन बिगाड़ते हैं। कुछ ऐसी सी बात मैं सोचती हूँ। तो जो भी पन्ना खुलेगा वो मैं कविता पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। मैं कोई कविता डिसाइड नहीं करके आई हूँ, या फिर प्रेरणा और जो लोगों ने सुना वो बता दें कि कौन सी पढ़ूँ। हिडिंबा मेरी फेवरेट है। अच्छा ठीक है, और हिडिंबा ही खुला है। मैं हिडिंबा पर एक कविता सुनाती हूँ। हिडिंबा पर मैंने एक नाटक भी लिखा है। हाँ, पूरी नाटक है और एक मैंने गांधारी पर लिखा है।
तो मैं हिडिंबा वाली एक कविता लोगों को सुना करके समय को 1 मिनट लगेगा इसमें ज़्यादा। और इस कविता का शीर्षक है मैं स्वयंवरा। तुम्हें सीखने होंगे, हिडिंबा इज टॉकिंग टू हर सन घटोत्कच। तुम्हें सीखने होंगे सब उपाय, दांव पेच सब, वन के नगर के ओ पुत्र घटोत्कच। मैं नहीं थी राजपूत की कन्या, मैं नहीं थी राजपूत की कन्या जिसके स्वयंवर में आते कुमार देश भर से, और उनमें से कोई एक राजा की शर्तों को पूरी कर जीतता राजकुमारी। सुनो पुत्र, मैंने तुम्हारे पिता को वरा, मैंने तुम्हारे पिता को वरा, युक्ति और बल के कौशल से मैं स्वयं वरा। और अब ये कहानी अमृतसर आ गया है। ये कहानी आप लोगों ने ही सुनी है, एक तरह से देखा जाए मालूम है। और ये कहानी है पाकिस्तान के साथ विश्व सानी की कहानी, बहुत नाम। गाड़ी के डब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर ही करके हंसते और गोरे फौजियों की खीरी उड़ाते रहे। डिब्बे में 3 पठान जापानी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने से ऊपर वाली बर्थ पर लेटा था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वह आपस में पश्तों में बात करने लगे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह से ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है जो एक और, पर वे मुझे याद नहीं है। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जाती। मेरे सामने बैठे सरदार जी मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान के बस जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता, अरे बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या दुख है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में अनुमान लगाए जा रहे थे, कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे हो रहे थे और कौम आजादी की तैयार न चल रही। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। शायद झेलम का स्टेशन नीचे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को दे दिया। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की रोटी बनाकर खाने का आग्रह करने लगा। खाने बताएगी हम जैसा हो जाएगा।
बीवी भी तेरे साथ खुश है। काले दाल और काले दाल दादा इसलिए दुबला है। डब्बे में लोग हंसने लगे। बाबू ने कष्टों में कुछ जवाब और फिर मुस्कुराता से लगा। इस पर दूसरे पठान ने हंस कर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से खा ले। खुदा कसम करना गोश्त है, पर किसी चीज का नहीं है। ऊपर बैठा पठान झट कर बोला, ओ खंजीर के तो खम, इधर तुम्हें कौन दे? अब तेरी बीवी को नहीं बोलेगा और तो हमारे साथ रोटी तो आखिर तेरे संतान ये ना। इस पर कहता उठा और दुबला दुबला वो हंसता रहा, सिर हिलाता रहा, कभी कभी दो चार शब्द पशु ओ कितना बुरा, अब आता है तो हमारा मुँह। अरे ये इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए। स्टूल खाए सरदार जी बोले और बोलते बोलते ठीक करने लगे। अदले की मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी धूल सीट के नीचे रख तुम अभी सो के उठे हो और पोटली खोल के खाने लगते, इसीलिए बाबू जी तुम्हारे हाथ में ले कोई बात। और सरदार ने मेरी गलती का हाथ मार अरे मासूम खाता है बाबू, तो चल जनाना डिब्बे में पका के रख, इधर क्या करता है? फिर डर रहा होगा। डिब्बे में और भी मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने पर गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकलीफी आ गई। इधर आके बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम के साथ खाना करेंगे हम लोग। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का लेना अंदर आ गया। बहुत से मुसाफिर एक साथ घुसते चले आए। कौन सा स्टेशन है? वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर क्यों नहीं कहा। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई, पर छूटने से पहले छोटी सी एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था कि भाग कर अपने डिब्बे की ओर आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने नल पर खड़े और लोग भी 3 या 4 आदमी रहे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे के भाग रहे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका। देखते देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अब भी हंसी मजाक चल ही रहा था। कोई गड़बड़ है? मेरे पास बैठे दूल्हे बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं जानता। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी तब्दीली को भाग गया। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, सभी तभी पिछले दरवाजे की ओर से जो प्लेटफॉर्म के उल्टा खुलकर दूसरे ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। अरे कहाँ घुसा चला आता है? नहीं है जगह, बोल दिया ना, यहाँ जगह नहीं है। अरे बंद करो जी दरवाजा, जो भी मुंह उठाए उसे चले आते हैं। आवाजें आ रही, दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा है। तभी मैले कुचैले कपड़ों लटकती मूंछों वाला एक आदमी दरवाजे के अंदर घुसता दिखाई। चीखट मैंने कपड़े जरूर कहीं हलवाई बना। वह लोगों की शिकायत की आवाज को ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर को घस गया। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ। वह अपने पीछे किसी को कहा। तभी दरवाजे में से पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 वर्ष की एक सांवली सी लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को फूलों के बल बैठना था। अरे बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़ जाते हैं, अपने ठाक का घर समझ है। बस उसमें दो थी, बात क्या करते हो, रखेगा पीछे। और लोग भी चिल्लाते। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ।
कोई डब्बा नहीं मिला और जाकर यहाँ उठा लाया है। वहाँ आदमी पसीने से सामान अंदर घसीटे जाता। संयोग के बाद रस्सियों में बंधी खाट की बाटियां अंदर खींच गए। मेरे पास बेटिकट नहीं हूँ, लाचारी है, शहर में गंदा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन में पहुंचा। इस पर डब्बे में बैठे बहुत लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान को चक्के उड़ा, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है, इधर जगह नहीं है कहीं। और पठान ने पाँव दिखा, आगे बढ़कर ऊपर से ही मुसाफिर के नाच। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वो वहीं हाय हाय करती बढ़ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने की हिम्मत नहीं थी। वो बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में पहुंच गया। खाट की पार्टियों के बाद बड़ी बड़ी बच्चियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता टूट गई। निकालो किसे, कौन है? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे ढकेल दिया, जहाँ लाल बत्ती वाला एक पुलिस खड़ा सामान अंदर ले। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे, केवल दुनिया को लाया जाए। मेरे पास क्या बैठ, ये चद्दर से संभाल लेंगे, छोड़ो बेटा, वो बैठने दो, आप देखिए आजा। अभी आधा सामान ही अंदर आया होगा, छूट गया, सबका सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया नीचे। संदाज के पास खड़ी लड़की सिर से कांप रही थी, चिल्लाया जा रही, पिताजी सामान छूट गया, क्या करें? उठो, नीचे उठो। वह आदमी घबरा कर चिल्लाया, आगे बढ़ते खाट की बाटियां और तकियां बाहर देते हुए दरवाजे का डंडा। उसके पीछे उसकी भयाकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे। बहुत बुरा किया तुम लोगों, बहुत बुरा किया, तुम्हारे दिलों का दर्द मर गया। छोटी सी बच्चियों के साथ छिपे रहो, बहुत बुरा, धक्के देकर के उन्हें उतार दिया, बहुत बुरा। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म पर नाम आगे डिब्बे में जाकर से चुप्पी छाई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की किसी की हिम्मत नहीं। तभी मेरे बगल में बैठे दूल्हे बाबू ने मेरे बाबू पर हाथ रखा और देखो और उतर करके फर्श के नीचे फर्श पर उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हुआ। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसे चोरी करने लगा। तो बगैर तुम मर्द की औरत है, सीट पर से उठ के नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। तो बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा। फिर वह उसे पश्तो भी कुछ कहने लगा। बाबू चुप लगा लिया। हम में सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझ भी लगा। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देता। ओ बाबू, तुम अगले स्टेशन पर होकर जाओ, जनाना डिब्बे में जाके बैठो। मगर बाबू के हाजिर जवाबी अपने कंठ में सुन हकला कर चुप हो रहा। पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर के सीट पर आ बैठा और देर तक अपने कपड़ों की छुरी काटता रहा। क्यों उठकर फिर फर्श पर लेट गया था। शायद उसे डर था कि शहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले भी चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया और उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर रात गहराने डब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे हुए थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा धीमी पर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे को देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर सन्नाटा और भी गहरा हो जाता।
केवल पठान निश्चय। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला था ही नहीं। धीरे धीरे पठान उड़ने लगा, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे लगे। बुढ़िया मुंह से लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अब लेटे ही कुर्ते के जेब में से काले मनकों की तस्वीर निकाली और धीरे धीरे उसको हाथ चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी रहस्यमयी हो गई। किसी किसी वक्त दूर किसी आग के शोले उठते नजर आते, कोई नगर जला। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरवंश पूरा निकल गया है, अरे हरवंश पूरा निकल गया है। उसकी आवाज में तेजना थी, जैसे वह चीख कर रहा था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंके। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज सुनकर ही कर रहा था। वो मांगो चिल्लाता क्यों है? तस्वीर वाला पठान चौंक कर इधर उठेगा, जंजीर की जो उससे और ठीक ही लगे हंसती है। जाहिर है वह हरवंशपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ है। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर जाने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक का सा शब्द हुआ, शायद गाड़ी में लाइन लगी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी चले जा रही। शहर आ गया। फिर वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है, अमृतसर आ गया है, हाँ अमृतसर आ गया। फिर उसने कहा उछल गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेके पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे भगवान नीचे कर, तेरी तो माँ नीचे कर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा, चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्वीर वाले पठान ने गर्दन पकड़ी और बाबू की ओर देखकर कहा, और क्या है बोला? बाबू को तेजी देखकर ने मुसाफिर नीचे कर, तेरी तो माँ नीचे कर, हिंदू औरत को लात मारते हम जागे तेरी तो। और बाबू बक बक नहीं करते, वो खंजीर के तो हम गाली मत बको, हमने बोल दिया हम तुम्हारा जुबान खींच लेगा। गाली देता है मारो। बाबू चिल्लाया और उछल कर सीट पर खड़ा हो गया। वह सिर से पांव तक कांपा। बस बस हिलने की जगह नहीं है सरदार, थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो, आराम आराम। तेरी तो मैं लात ना तोड़ूं तो कहना गाली तेरे बाप की है, तूने उस औरत को। बाबू फिर चिल्लाया, और हमने क्या बोला? सभी लोग उसको बाहर निकालता, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता, हम इसकी जुबान खींचने का। बुढ़िया फिर बीच में बोल बैठी, बेटी उठो क्यों, आराम ना बैठो, ये रख दियो बंद दियो, कुछ तो होश करो तो सी, आराम ना आराम। उसके होठ किसी पेड़ के होठों की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से हल्की सी खुशबू सुनाई दे रही थी। और बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था। अब बोल मैं तेरे इस पठान बनाने वाली। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे, पीछे क्या हुआ है? कहीं दंगा हो गया? लोग कह रहे दंगा हो गया। आपने देखा जी? खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी। पीछे हुआ प्लेटफॉर्म पर खड़े दो तीन खोंचे वाले पर मुसाफिर टूट पड़े थे। सभी को सहसा भूख और प्यास ने परेशान कर दिया था। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए, खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उसे पश्तो में कुछ बोलने लगे।
मैंने घूम घूम कर देखा, वो डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वो डिब्बे से निकल गया। मेरा माथा ठंडा, उससे मैं वह पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले किसी डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर हो रहा था, अब सारी गाड़ी के साथ खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी थी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे थे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अब भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूम रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी। जाने वह उसे कहाँ से मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छत को अपनी पीठ के पीछे कर दिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने ओले से छड़ सीट के नीचे सटा दी। सीट पर बैठते ही उसकी आंख पठानों को देख पाने के लिए ऊपर उठी, पर डब्बे में पठानों को न पाकर वो हड़बड़ा कर चालू दिखे। निकल गए सबके सब निकल गए। फिर वह सिर पिटाकर उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, और तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल हो तुम लोग। और गाड़ी में बहुत भीड़ थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसके विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो मेरी बगल वाली सीट पर आ बैठा और बराबर बढ़ पाएगा। धीरे धीरे छोड़ने खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी थी। डिब्बे के पुराने मुसाफिरों ने भर पेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहाँ उनकी जान का नए मुसाफिर बतिया रहे थे और धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी। कुछ ही देर बाद लोग घूमने लगे, मगर बाबू अभी आंखों के सामने ही दिखेगा। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकल किस वक्त उसके सिर पर गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद घूमने लगा। डिब्बे में लेट पाने के लिए भी जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सर कभी इस ओर कभी उस ओर लुढ़कने लगा। किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूट गई और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खटाखे सुनाई देने लगे। डिब्बे में तरह तरह के आगे दृश्य मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो वह कभी खिड़की के बाहर मुंह किए देख पाता, कभी दीवार से पीठ लगाए तल कर सामने देखता। इसी तरह जब मेरी नींद एक बार खुली तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह देखते खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल में चमक रहे थे। स्पष्ट उत्तर गाड़ी को स्टेशन नाम कराई थी और अभी तक उसकी रफ्तार नहीं पड़ी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक भूमि सा नाला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था कि पड़ने वाली है। डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज। मैंने दरवाजे के अंदर देखा, डिब्बे का दरवाजा था। मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी और मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई व्यक्ति डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा। मैंने झांक कर खिड़की से बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे। उसकी दाढ़ी थी। फिर मेरी नजर बाहर की ओर गई। गाड़ी में के साथ साथ एक औरत चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी। बोझ के कारण उसके दौड़ा नहीं जा रहा। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसके मुंह देख रहा था और हाफता हुआ कहता, अच्छा जल्दी आ, तू मेरे पास आ। गाड़ी पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा। खुदा के लिए दरवाजा। मेरे साथ औरत जा रही थी, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ाते और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में से खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर बोला,
इधर जगह नहीं है, बात खड़ा आदमी, बात खड़ा आदमी फिर के बुला खुदा के वास्ते गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में सब हाथ डाल कर दरवाजा खोल पाने से नहीं है जगह, बोल दिया ना नहीं है जगह, उधर जाओ गाड़ी पर। बाबू चिल्लाए और उसी क्षण लपक कर उसने दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी का सुख से स्वर सुनाई पड़ी। दरवाजा खोलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ दे दिया। एक ही भरपूर बार में बाबू ने उस मुसाफिर के साथ एक छड़ मार दी। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लग गई। मुझे लगा जैसे छड़ की चोट का उस आदमी पर कोई असर ही नहीं पड़ा। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडे को पकड़े हुए थे। डंडे पर से लटकती गठरी सर पर उसकी उंगली पर आ गई। और तभी सहसा उसके चेहरे पर लोगों के 2-3 धारे एक साथ चुटपुटे में मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2 बार बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा। अद्भुत आंखों से धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी कि यह कौन है और उसने किस अदावत का बदला उससे लिया है। इस बीच अंधेरा और चढ़ गया। उसके होठ फिर फड़फड़ाए और उसके दांत, सफेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे मुझे मुस्कुराया है और वास्तव में त्रास के कारण उसके होठों पर बल पड़ गई। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हुआ था हुआ क्या है। वह अभी भी शायद नहीं समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी में ठीक से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर नहीं चल रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर को पकड़ पकड़ के सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे पर से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे आ गया। और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया। मानो उन दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में खुद का खुद बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी उसके हाथ में। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ ही नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी खुली थी और डिब्बे के अंधेरे कोने में मैं खिड़की के साथ सककर बैठा उसको देखे रहा। फिर वह आदमी खड़े मिला, जैसे किसी अज्ञात प्रेरणा में वह एकदम आगे बढ़ गया और दरवाजे में से पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधेरा कुंज सा नजर आया। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के हाथ में दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देख रहा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी और उसकी मजबूर थोड़ी देर रखा, फिर उसने घूम करके दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों को देखा, अपने हाथों की ओर देखा, फिर एक करके अपने हाथों नाक के पास ले जाकर तो मैं इसमें मानो जानना चाहता था कि उसके हाथों से उनकी तो नहीं आ। फिर वो तभी पाँव चलता हुआ आया और मेरी बगल से पकड़ लिया। धीरे धीरे छुटपुटा चलने लगा, दिन पड़ने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया। छड़ खाकर गिरी उसकी देह नीलों पीछे छूट। सरदार जी भजन खुजलाते हुए बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों सिर हाथ के पीछे रखे सामने की ओर देखेगा। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। सामने अपने सामने बैठा देख सरदार उसके साथ कहने लगा, बड़े जी बटवा वाले हो जी, दुबले पतले हो जी,
बड़े बोलता है तुमने बड़ी दिखाई। अरे तुमसे डर के ही वो पठान जब पेश हो तो आप यहाँ बने रहते तो एक नए की खोपड़ी तो तुमने दुरुस्त करी थी, क्यों कर दी होती ना। सरदार जी खींची करते बाबू जवाब में मुस्कुराया। ये बहुत बेहद सी मुस्कान उसके चेहरे पर बाबू memories of my family from Lahore, extended family, and I have got emotional. Thank you for this beautiful narration, because there is so many untold stories, personal stories which each each family suffered, and this Amritsar journey of how the fear and how people braved it is absolutely astounding. I had, one particular thing which I can share with you is of my brother-in-law's family who walked with a 2-year-old boy, and when they were walking there was no water, so they had to drink water from whatever well is available, and each well had blood in it. So the little boy had to drink blood to survive. So there's too many stories, too many tragic stories. So I want to thank you for doing such a justice to what people suffered. I'm trying to figure out when you have created these, you have brought these characters to life. Their suffering, their fear, their pain, and the different atmosphere of, group. Do you feel to read your own story? Very often you do this, rendering other people's stories. Do you feel you could have written another story? Because this is like, you've got a whole set of characters to life. You feel that the margin is, or line is too narrow between your rendering of it, and you could have created your own story. Do you feel that? Because it's like you lived in that time, the way you expressed it. Do you feel that way? Because this story, I don't know how it happened, but Vishnuji wrote that when I was coming, there were wheat fields. So I thought that when he's coming, say May, June, July, because the narrator is coming for Independence Day celebrations. So I was sure that there won't be any wheat fields there at that time, because there may be some greenery, some vegetables, some other things like maize and all, but no wheat field. So I edited 2 portions there, because I know because whenever people think of Punjab, they always think of Delhi. And then they forget the months that we said a week forward, and in many cases it would be there after April. So I did that. So what I do, I have written few stories, of course, and when I read these stories, it's a kind of a recreation from my side also. So I don't write in words, but I write the way it is. It has all the characters are to be there. Their fear, their apprehensions, their the change of mind. That just see the little thing that तुम मीठ खाएगा तो तुम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड तुम्हारी बीवी खुश होगी. हिंदू और मुसलमानों में एक बहुत बड़ी बात थी कि भाई आप जानते हैं सारी चीजें. तो ये वो चीज थी जो किसी भी आदमी को गुस्से में ला सकती है कि मैं तेरे हाथ मीठ खाऊंगा नहीं, तो तुम मेरे बीवी मुझसे नाराज इसलिए रहती है कि मैं सेक्सुअली वॉक नहीं करती. यहाँ पर किसी तरह के भी लोग होंगे, लेकिन हम सब इन सब बातों को, मैं इन सब बातों को बहुत गहरे में सोचती भी हूँ और इस पर काम भी करती हूँ. This is my book of mine about Armenian genocide. It's about genocide. This is about the Armenian literature. How did they see genocide? Their writers, their poets. And then there are several essays in this, the memoirs, the other things. So when I did this book, I could really very well relate with the independence, whatever happened
during partition in our country. As you said, no? Yes. I have read Urvashi Butalia's book on and I myself wrote a few stories. I have done last month I did 4-5 stories about partition. Again, the story, there is one again, 2 stories from again. Then one Krishna Chandra. I did several stories. Rajendra Vedi. तो और जैसे आपने नरेट किया तो वही चीज़ें याद आ रही है मुझे बचपन वाली कि जैसे वो बताती थी कि एक ट्रेन में लोग गए और किस तरह से वो उलझे रहते थे, वही हिंदू अलग और मुस्लिम अलग और रहना भी अलग अलग चाहते थे उस टाइम पे। काफ़ी तकलीफें उन्होंने उठाई और आपने बहुत अच्छे से बताया। So I think it's a very interesting thing that we actually have Dr. Vinod Kumar, who was HOD Geriatric, he headed AIMS. And what is interesting why I'm introducing him is that he actually knew the writer who was his teacher. So Bhishma Sahariji has been his teacher, so we're very happy to share something. And these memories were very unpleasant. I was a 10-year-old boy when the partition took place, and I have personally seen the Muslims being massacred in Delhi, and I used to hear in erstwhile place which is now called Pakistan, the Hindus were being butchered. And in Paharganj and other places, there were places where heaps of dead bodies. I was witness to that, very unpleasant memories. And I was one of the children at that time who used to serve food and water to all the refugees who were arriving in Lodi Road, and for that matter other also. I was living in Lodi Road, and they were being brought in trucks from Old Delhi railway station like thousands of sheep and goats. They were not being brought like a human being, because everybody wanted to board that truck. There were too many trucks were there at station, and they would be taken away anywhere. All those who were coming to Lodi Road, we children had the duty to rush to them and serve them food and water all the time. They were hungry, thirsty, they were in very bad shape, having traveled all the way from Pakistan, having lost some of the people on the way in the train, and you were talking about someone asking their children to drink the water with blood. But in this journey, Mohammed Al-Jazli mentioned those things are taking place from Pakistan or from Lahore to Amritsar and to Delhi. During that journey, people were so thirsty, children were so thirsty that the parents passed their urine and made their children to drink so that they survive. So that is the story that I vividly remember. And I also remember one story where we were living in Lodi Road. My father was government servant, and Lodi Road is government quarters. So I remember we were on first floor. All the ladies on the ground floor quarters and first floor quarters, they will all, some voices will come from Porla side. Musalman aa rahe hain, bachao. So all the ladies, including my mother. My mother was about 15 years older to me, so she was about 25 at that time. So all these ladies would wear the pants, not saris or some. They were wearing salwars, no sari. But as soon as these voices were coming, they would immediately wear the pants, and all of them will rush to the top floor. That was Chhat. So I used to ask my mother, कि आप ये पैंट क्यों पहन रही हो ऊपर भाग नहीं रही? बोले बेटा तू समझेगा नहीं. That was mainly because they were fearing of assault by the Muslims. They were coming in large groups to cross over to Turkmen. They would not come single. Curfew was there, so they would come in the dead of the night, and they will stealthily come. And if some altercation or collision would take place in Hindu, they would also attack
like the ladies, that kind of thing. Now, one particular incident which I clearly remember, I was on the front floor out, block number 9, quarter number 740. I was standing on the balcony. You remember that there is a market called Khanna market? Yes. Now, there was no Khanna market that time. It was all a footpath. And very lonely footpath. Once in a while, a man will pass like that. So, all the men, young men, including young Sikhs, they would be all hiding under the staircase in every quarter, and they would see that anybody who passes on that footpath, because the way was from Kotla to Mandek, so they would pass there. So they were instructed, anybody who passes, just find out that he is not a Muslim. So what happened, I am narrating that incident. I was standing on the balcony, and one person was passing, and he was wearing a salwar and a shirt. I don't know, but he should not have wear it because he was intentionally passing. So the Sikhs who were hiding under the staircase, they sent a 15 or 16-year-old Sikh boy to find out what is his name. So that boy went and he asked, "What's your name?" And he said, "My name is something like Mohan or Ram." I don't know. He said some Hindu name. And he was carrying some paper in his pocket like that. So that Sikh boy, they took out the paper, and the paper was something, either it was passport or some document in which the name Muslim was written. So that Sikh boy immediately gave a signal, and all those Sikhs and Hindus who were hiding, they all went up, and they started beating him, and they wanted to kill him. So what they did, they were trying, all those Sikhs had their sword, so they tried to take out the sword, but these swords were never used, so they were all jammed. So they could not take out the sword. So what they did, they started hitting that person with the sword, with the cover of the sword, along with the sword inside. It was very heavy. So they killed him on the spot, and from his eye, lots of blood came, and he just tried to come up to the neck block, and he started crying, "Allah Akbar." Like that, आपने बोला कि वो अल्लाह है, अल्लाह. So ये भी इतना बोला अल्लाह बख्श, but he was killed. So that happened in my. And the other thing I remember कि मेरा एक भाई भी था उसमें, मैं 10 साल का था, वो 5 साल का था, तो हम लोग पजामे पहनाते थे, तो पजामे का जो नाड़ा होता है उसके अंदर कुर्सियाँ देते थे, कुर्सियों पर लिखते थे ये हमारा एड्रेस है, मेरे को कहते हैं, वो उस नाड़े के उसके अंदर डाल देते थे, अगर तुम खो जाओ कहीं तुमको ले जाए तो कम से कम एड्रेस करो. So such a dreadful situation was there. Now coming to Bhisham Sani, I was actually attracted by the flyer that you sent to me, where madam's name was written and Bhisham Sani's picture was also there, your picture was also there. So I was greatly attracted. I am a student of Zakir Hussain College, that is Delhi College, near Ajmeri Gate, and that college is still there. It has not moved to the campus. All other वो एक कॉलेज जो है अभी भी वहीं पर है. उसके बराबर है जाकिर हुसैन स्कूल भी है, तो उसके प्रिंसिपल थे भेग साहब, बड़े फेमस आदमी. तो मुझे एक बहुत सही एक लक मिली है जिंदगी में कि मैं डॉक्टर बन गया, और मुझे बहुत सारे लोगों की सेवा करने का बड़ा मौका है. और आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास कोई पुराना टीचर आ जाए और वो ये कहे कि भाई मैंने सुना है कि तुम डॉक्टर है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, और मैं कुर्सी छोड़ के उनको बिठाने लगा, मुझे बताइए क्या. तो कहते यार मेरी ऐसा डायबिटीज है. तो मैंने दिल्ली कॉलेज के भी बहुत से टीचर्स का खूब सेवा करी, बड़ा मजा आता है टीचर्स को लुक आफ्टर करने में, बहुत अच्छा लगता है. तो
मैं जब अब मैं बात करता हूँ 1955 की, जब मैं इंटरमीडिएट प्री मेडिकल कर रहा था, 2 साल का, और हाई स्कूल होता था, हायर सेकेंडरी होता था, तो मेरे जो टीचर थे, कई सारे टीचर थे, वो सब 35-37 साल के थे। उनमें से भीष्म सानी थे। भीष्म सानी बस इंग्लिश टीचर। मुझे भीष्म सानी ने डायरेक्ट नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मेरे इंग्लिश टीचर थे जिसका अशोक चक्रवर्ती, वो भी बड़े फेमस थे। कभी वो छुट्टी में होते थे तो वो पीरियड लेने के लिए भीष्म सानी आते थे। तो अब मैं उस वक्त करीब 17-18 साल का था, मुझे ये अकल ही नहीं थी कि भीष्म सानी का बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में। 17-18 साल के लड़कों को उस जमाने में क्या अकल होती थी। बाद में ये 1955 की बात है, तो मैं 1965 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ज्वाइन एज ए जूनियर। फिर वहाँ मेरी पूरी जिंदगी बीती, मैं 35 साल करीब काम किया। लेकिन 1965 ज्वाइन करने के बाद जितने जाकिर हुसैन के जो टीचर थे, उनको आपस में बात करते थे, यार तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा एक लड़का है वहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, उसके पास चले जाओ, तुम्हारा हक बनता है उसको डांट लगाना, भाई मेरे को ठीक कर दो। हाँ, तो उस सिलसिले में मेरे वहाँ पे टीचर हुआ, उनमें से एक भीष्म सानी भी थे। भीष्म सानी मेरे पास एज ए पेशेंट आने लगे थे। उस वक्त भी मैं उनको एज ए टीचर पहचानता था, मैं उनके कंट्रीब्यूशन को उतना नहीं पहचानता था, हालांकि वो उस वक्त तक भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और मेरी अपनी उस उम्र में हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। मेरी प्रायोरिटी थी वो मेरे टीचर, तो मैं उनकी इज्जत करता था, उनको बिठाता था। और भी सब आते थे, अशोक चक्रवर्ती, दुबई फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के स्कूली थे, सारे मेरे पास आते। तो आप अंदाजा लगाइए कि मुझे कितनी खुशी होती है टीचर जब मेरे पास आते हैं। तो भीष्म सानी साहब का एक इंसिडेंट में बता, जब सन 55 में हम प्री मेडिकल करके छोड़ रहे थे, बहुत बड़ी फेयरवेल पार्टी थी जिसमें पूरा कॉलेज शामिल था। और बाद में सब बच्चे अपने पता नहीं कहाँ से कैमरे ले आए थे, किसी के चाचा के पास कैमरा था, फोटो खींचने के लिए एक कैमरा था, रोलिंग फ्लैक्स हुआ था, एक लड़का रोलिंग फ्लैक्स कैमरा ले आया। तो उस फेयरवेल पार्टी में कॉलेज के अंदर बलराज सानिया, उनके बड़े भाई बलराज सानी आए, और हम लोगों ने कहा बलराज सानी वेरी वेल नोन एट दैट टाइम, तो भी का जमीन भी कटे हुए थे। तो बच्चों ने कहा यार बलराज सानी आया, तो तो मैंने क्या किया, मुझे भी याद है, उनके ऑटोग्राफ लेने का बड़ा उन दिनों वो था, मेरे पास कागज नहीं था, तो मैंने ₹1 का नोट कर दिया। मैंने बलराज सानी साहब के साथ सर इस पर सिग्नेचर कर दिए, कागज नहीं थे तो उन्होंने सिग्नेचर कर ऑटोग्राफ। बलराज सानी के साथ उनकी वाइफ भी थी और एक बच्चा उनकी गोद में था, और मेरे घर में वो परीक्षा सानी बाद में परीक्षा सानी, और आई एम नॉट श्योर, एक बच्चा गोद में था। ये सब बड़ी अच्छी बातें हुई है मेरे साथ। और फिर बलराज सानी, फिर बाद में तो ये भीष्म सानी टेलीविजन की फिगर बन गए, माचे तो पता नहीं क्या क्या बनाया। मैं देखता था ब्लैक एंड वाइट टीवी था हमारे, वो मेरी पूरी कॉलोनी में मेरा ही ब्लैक एंड वाइट टीवी था, पहले किसी पर टीवी होता ही नहीं था। वो भी इसलिए था कि मैं वहाँ से इंग्लैंड गया था सन 68 में, वहाँ से एक ब्लैक एंड वाइट टीवी ले आया, तो वो सारे बच्चे पड़ोस के नहीं देखते थे, उसमें भीष्म सानी के भी आते थे और भी आते थे। तो ये सारी ये बातें ऐसी याद है, और आपने मुझे मौका दिया कि ये शेयर करने, तो मैंने अपने दिल से जो है ये सारी बातें, इतना आपका टाइम भी ले लिया। और मैडम आपको भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी बढ़िया स्टोरी बताई है, और उनकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। और बस और तो मुझे कुछ कहना नहीं है, बाकी कुछ और याद आएगा तो बता दीजिए। आपने तो कहानी पढ़ी,
और जब हम लोग विशेष रानी जी से मिले और शाम को 7 बजे कहानी का सेशन करते थे हमारे साथ। He was a very liberal man. और जो आपने कहानी में भी दिखाया है, it is anti-violence. It is not in fact supporting either one side or the other. And according to me, you've chosen a beautiful story because it shows that communal violence doesn't solve anything, and it is a story that is anti-violence. Now, my question to you is, if I'm picking up from what Tesha was saying, that when you prepare a story, do you go through an emotional change yourself? जब भी आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमारे उसमें थोड़ी सी पारिभाषिक शब्द है, थोड़ा होता है परकाया प्रवेश, यानी आप दूसरे के काया में प्रवेश करते हैं, एक एक कैरेक्टर्स के साथ आप उनकी काया में प्रवेश करते हैं। और जब मैं कहानी पिछले करीब मैं 100-200 कहानियाँ पढ़ चुकी हूँ, तो आप लोगों के साथ जैसे वैसी कई कहानियाँ में पढ़ती हूँ। तो जब भी मैंने इन कहानियों को पढ़ा है तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ह्यूमन हुई। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि यह कहानी बहुत धीरे धीरे जो हमारे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें 400, 500, 600, 800 सालों से जो चीज़ें बसी हुई हैं वो कैसे ट्रिगर होती हैं धीरे धीरे। शुरू में डिबे का बहुत मजेदार है, धीरे से वो मतलब जैसे आपस में हम लोग बात करते हैं अपने दोस्तों से, यार तुम्हें ऐसे ये कपड़े पहन लिए, तू तो काली सी दिख रही है, या तुम तो ऐसी सी दिख रही है। यहाँ से जो बात शुरू होती है, जो सालों की जमी हुई जो काई होती है वो किस तरह से गंद बन करके ऊपर आ जाती है, ये कहानी है। और ये कहानी ये बताती है कि लोग किस तरह से, मतलब लोग पूछ रहे कि क्या वहाँ दंगे हो गए हैं पीछे, यानी हम भी कुछ करें। मैं खत्म कहती हूँ कि पिछले कई सालों से जब मैं देखती हूँ अपने आसपास को, जब मैंने इतने साल स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर ऑल थ्रू माय लाइफ, तो जब भी मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनके दिमाग कैसे बदलते और किस तरह से हम अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स को कितना महत्व देते हैं। अभी देखिए लोग कैसे गाली दे रहे हैं किसी को भी, जैसे मैं ये कहानी सुना रही हूँ, कोई भी मुझे एनपी को करके बोल दिया कि इसको तो विष्णु सानी की कहानी सूची और तो विष्णु जी से सुनानी, इसे राजाओं की सूची और तो विष्णु जी से सुनानी, मन तो इसको चलता है। ये जो डिवाइड है सोसाइटी में, जो मेंटल डिवाइड जो बन रहा है, मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानियों के खिलाफ, मैं चाहती हूँ कि वो दिमाग के उस कोने को जाकर के ऐसा करें जैसे मेरे दिमाग के कोने को करती हैं कि हाय इसको ऐसे नहीं ऐसे देखना चाहिए। कोई मुझे आकर के बोले, मैं आपको अपने जीवन की घटना बताऊँ। इट वॉज 1984, मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम लिखने, मैं उस समय लिख रही थी, उसी से मेरा बाद में, उसी एग्जाम से मेरा बाद में हुआ। लेकिन दैट वॉज अ बैड ईयर फॉर मी क्योंकि आई हैड प्रिपेयर्ड और सारे प्रॉब्लम 31st को लंबे हो गए और मैं उसमें आके तो सेक्टर 8 पे गया। कमेटीज बनी जिसमें मेरे फादर और मेरे हस्बैंड दोनों, मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड दोनों थे। और रात को एजिटेटेड मेरे हस्बैंड 2 बजे रात को लौटे और बोलते हैं कि लोगों को ना ह्यूमर्स फैलाने होगा। और व्हाट वाज द ह्यूमर? ह्यूमर ये था कि नानकपुरा का जो गुरुद्वारा है वहाँ पर सरदारों ने टंकी में पानी, टंकी के पास में चले गए और उन्होंने वहाँ पर खूब जोर से डांटा था लोगों को और कहा था कि आप ह्यूमर्स मत फैलाएंगे। और उस रात की सुबह ह्यूमर्स वो ये शक्ल ये थी कि उस रात की सुबह 9 बजे तक हमारे अपने मार्केट में सेक्टर 8 आके के मार्केट में 2 सरदारों के दुकान में दोनों दुकानों को जला दिया गया। 4थी मंजिल पर रह गए थे इसलिए वो लोग बच गए, लेकिन उनके घर में इतने टेंशन हो गए कि विदिन फ्यू डेज उनकी वाइफ को उनकी बहू ने कमिटेड सुसाइड। इतना वो झेल नहीं पाई और शी वाज अ यंग वुमन ऑफ 32, छोटे 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, और उसने कमिट कर लिया सुसाइड क्योंकि घर में 2 दुकानें जल गई और उनके घर में सारी आफत और इतनी चलने वाली दुकान। आपको अच्छा सामान लेना हो सरदार से 10 साल
मैं कहती हूँ कि जो भी चीज़ आप मतलब मैं सिर्फ हरदम एक बात कहती हूँ और अपने आप से सबसे पहले अपने आप से कहती हूँ जो भी सुनो सबसे पहले तो लॉजिकली तुम सवाल इज इट पॉसिबल क्या आदमी आम के बाकी सारी समाज के आम का अंधा हुआ पड़ा है कि एक आदमी 500 सीटें चढ़कर के ऊपर जाकर टर्की में जहर मिला रहे हैं एक कम्युनिटी में जहर मिला रहे हैं आँख के अंधे हो कान के बहरे हो दिमाग तुम्हारा क्या मतलब है ही नहीं मैं बता दूं सबसे मजा आता है बिकॉज अभी तक हम लोग ने बिना कमाओ चाहे कितना भी आप पढ़ लें कुछ भी कर लें तो बेसिक वो है ना जिसमें कि हम जानवर हैं खून देखकर के हम लोगों को सब बता एक उत्तेजना होती है कि आप तो हत्या नहीं कर सकते आप खून नहीं देख सकते कौन कर रहा है अरे ये तो अभी देखिए कोई किसी बड़े आदमी को गाली देते लोग रोते हैं वेरी डेयरिंग वेरी ब्रेव ब्रेव तुमने उसको गाली दी ये बेसिक इंस्टिंक्ट है हम लोग बहुत आगे बढ़ने से ये जो इंस्टिंक्ट आप बता रही हैं ये फॉर्चुनेटली ये इंस्टिंक्ट है जब एक स्टेज पे आदमी पहुंच जाता है उम्र के हिसाब से वो जो बाहर की है ना जॉय ऑफ एजिंग so when you are aged then everything get narrowed down except some exceptions तो एजिंग का जो मामला है वो इन चीज़ों को ब्लंट कर देता है लेकिन बाय एंड लार्ज our society young society as you say this is certainly true what you are saying लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर हम लोग कल्चरली सांस्कृतिक रूप से यहाँ तक पहुँच गए हैं ये 2024 है उस जमाने को हम 50 साल पहले छोड़कर यहाँ तक आए how can we really endorse why should we really endorse why can't we stand up and say no but who takes the company one person starts or few people start and then we all succumb to that why या हमारे पास नहीं है ये तो है दिल से ऊपर दे रहा है ना बात हमारी ये यहाँ है दिमाग है तो दिमाग को पहले प्रयोग करो Social media, digital world, and very important. That's others. We should carry these conversations on. Sorry, मैं थोड़ी तेजी तो जाती हूँ क्योंकि जब मैंने आर्मीनियन जनसंहार पर काम किया था तो मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी बदली पता है आप मैं आपकी लैंड में किताब लेकर के जाती हूँ जब मौका मिलता है हम जाना हो जाते हैं दुखी भी होती हूँ दर्द रह जाती है ऐसा कैसे होता है आपकी स्टोरी ने भी यही बताया कि हमें जो सैवेजरी है ना वो कैसे आपने बोला आपने इतनी सारी स्टोरी कि आपने पढ़ी which is your favorite भाई अब एक बच्चा तो प्यार करता है 10 उंगलियां बहुत प्यारी होती है कोई भी स्टोरी अच्छी इसलिए लगती है एक तो इसमें ना आपको चुनौती कितनी मिलती है पढ़ने के लिए आपने दूसरी कितने प्रिपरेशंस किए हैं क्या जानना चाहे मैं आई वर्क ऑन माय स्टोरी मेरे बारे साथ मैं तो लगभग 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन में काम करती हूँ then I get it this one story was रसप्रिया ये फनीशोदास रेणु की कहानी रेणु की कहानी है मेरे इसमें है फनीशोदास रेणु की कहानी है मेरे उसमें है मैंने इस कहानी को 2 बार पढ़ा एक तो आप जैसे आपके सामने और फिर चूंकि वो लोग रिकॉर्ड भी कर पाए थे और लोग बहुत सुनना चाहते थे मेरे चैनल पर बहुत लोग नहीं है मैं पहले फेसबुक पर सकती हूँ जहाँ बहुत लोग सुन लेते हैं चैनल पर इससे ताकि एक जगह है तो उसको पढ़ने के मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि उसमें ना बहुत सटल ढंग से विदाउट सेइंग रेणु ने जिस तरह से कास्ट पर जिस तरह से रेणु ने एक पूरी विद्यापति एक गायन है विद्या का गायन है विद्यापति
बकायदा विद्यार्थी को निकाला और गीतों के पढ़ते गीत थी, वो गीत किस गीत था, वो तो पढ़ते हैं लिखी थी। Then I spoke with जो जैसे लोकगीत गाती हैं भारती, उनसे मैंने पूछा कि मूल, मैंने बहुत एम किया तो मूल विद्यास इसलिए विद्यापति पर क्या जाते हैं। मैंने spoke to her और मैंने कहा कि विद्यापत ओरिजिनली विद्यापत कैसे है, और ये 4 गीत हैं, आप इसको गाकर मुझे बताएं। तो उन्होंने बकायदा मुझे 4-5 गीत जो थे अलग अलग किए, उसमें से 2 गीत मैंने उनको भेजना बोलेंगे तो फिर मैंने बेस्ड ऑन दैट तो इस पर मैंने काम किया। उसमें छोटी सी कहानी में बताते हैं कि ये फीस कहानी है, और मैं इसको इस तरह से पढ़ती हूँ किसी भी कहानी को, उसमें है इस हार्डली 40 जो रसपिया बजाता है हार्डली 40, लेकिन उसके दांत निकल गए, लोग उसे बुढ़ा कहते हैं। तो मैंने जब सबके सामने सुनाया था तो मैंने कहा था कि उस समय देखिए हम लोगों ने कितना प्रोग्रेस किया है। 35 की एज में लॉस्ट लीग वो बोलता है पूरा हो गया, लॉस्ट लीग में बोलता है पूरा हो गया, ये 40 की उम्र में पूरा हो गया। अरे कब तक तुम जीते रहोगे, कब जमीन पर तुम भार बने को जीते रहोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें बिना कहे उस कहानी में इतने सारे आते हैं। उस समय के मेडिकल सिस्टम पर आता है कि बेटा का जो बच्चा है उसकी दिल बड़ी हुई है, तो उसकी दवाई भी खा ली है, वो ऐसे करता है, गाना आता है उसमें, प्रेम है उसमें, इतना सकल प्रेम है। I love that in this story. कभी मौका मिला तो आपको beautiful story. Next section. इतनी सुंदर story, love. और उससे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं उसकी कॉपी आप लोगों को भिजवा दूँगी। वो फिर people can read that story beforehand. बहुत अच्छा है। जो आप कह रही है ना कि ये जमाना था जब 35-40 में आदमी बूढ़ा हो जाता है, and what Dr. Vinod just noticed, we say joy of aging. So definitely aging के साथ challenges भी हैं, and we have a lot of work that is going on. I think it's happy that in fact today Bindu ji brought her son doing a lot of work in AI, so that people who can't see can still be able to see in the sense that it converts what you're seeing into text. So I was telling you, I said, this is something which is also needed as we are aging, because visual impairment is also becoming an issue. So that was a very interesting talk I was having with him in the morning today. Would you like to say a quick word? Because then Yeah, it's a free app. You can get an idea of what I'm getting at. Microsoft has made an app called Seeing AI. So AI is all the rage. So what I want to do, what I'm in the process of doing is creating, seeing AI के साथ मुझे phone पकड़ना पड़ता है. What it will do is it will identify everything. It will read ये जो आपने लिखा हुआ है. It should be able to translate also. तो ये Microsoft वाली ऐप करती है कि नहीं. But what I want to do is make it so that through a camera in specs, you have this camera that's actually talking through AI to detect images. So it's just basically image recognition. And it should help not just those that are completely devoid of eyesight, but also ones that need a little bit of help. They lose peripheral vision, or they just need help, reading a newspaper. And the nice thing is that it will be paired with audio. So whatever you are seeing, it will relay it back through audio to the person where that's text. Right. They showed this once on a program, music program, which girl was blind, and she was trying to make these things. They came, they put the thing on for her, and she could see the people who she was talking to, kind of, Where did you see whatever that? the technology is, it's not very tech savvy. But they showed this to us on TV, on this program, and they presented this girl with these specs. So there is actually a lot happening, but this company was talking about it, and I said since we are already working in this area, so I have people like this, some of you may have heard of George Abraham, who is really good work, and so
I said he's a user. And then we have doctors, especially for specializing in retina. Diabetes is affecting your vision, macular degeneration is an issue with aging. So this kind of assisted devices are now even for people who are in the senior. So part of our agenda also, since we are doing eye care and we are into really works very well. So thank you. Pleasure. Thank you. Hopefully next time I come on, I got a sample. So I also request please thank the speaker. Anyway, thank you so much for a wonderful session. I think it was you brought everything. And for a South Indian like me, no, not the Hindi listening. We have heard stories. For us, it's a very distant listening. So whatever little I have had, what I've read. So that is, you have your own images of that. But this story brought a light somewhere. I was really shaken up. Even hearing about it. Thank you so much. And it's a big thank you.